Let's start. જેમ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ માંથી હું રજત વાણી આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણી સાથે MCX થી શ્રી આમ્રપાલ સિંહજી આપણી સાથે જોડાયા છે. મિસ્ટર આમ્રપાલ સિંહ ને 17 વર્ષથી વધુનો એક્સપિરિયન્સ છે કમોડિટી માર્કેટમાં. તે સાથે જ એમણે પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ, પ્રોડક્ટ એન્હાન્સમેન્ટ અને પ્રોડક્ટ અવેરનેસ જેવા ફિલ્ડમાં પણ MCX ને સેવા આપી છે. MCX તરફથી બુલિયન સાથે મળવું, ઇન્ટરેક્ટ કરવું, એમની રિક્વાયરમેન્ટ જાણવી જેવા કાર્યો પણ આમ્રપાલ સિંહજી કરતા આવ્યા છે. આમ્રપાલ સિંહે MCX મેમ્બરશિપમાં મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્ર ક્ષેત્રમાં પણ એમની સેવા ભજવી છે. આજની આપનો જે વેબિનાર છે એમાં મુખ્યત્વે MCX ની મારફતે ગોલ્ડ અને સિલ્વર જે મેટલ છે, જે બહુ ઉપયોગી મેટલ છે આપણા એક્સપોર્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અને જેમ એન્ડ જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, એમાં રહેલી જે રિસ્ક છે એનું મેનેજમેન્ટ MCX ના હેજિંગ થ્રુ કઈ રીતે કરી શકાય એના માટે એક અવેરનેસ વેબિનાર તરીકે આપણે આજેનો વેબિનારને જોઈશું. વેબિનારમાં આગળ વધતા પહેલા જેમ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના રિજનલ ચેરમેન શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયાને હું 2 શબ્દો કહેવા આવકારીશ. દિનેશ સર. નમસ્કાર મિત્રો, જેમ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ થી હું દિનેશ નાવડિયા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીં ઉપસ્થિત MCX ના સિનિયર મેનેજર આમ્રપાલસિંહજીનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આજે GGEPC ના એક્સપોર્ટ મેમ્બર્સને હેઝિંગ અને લગતી માહિતી આપવા જે સમય ફાળ્યો તે બદલ સમસ્ત ભારતના જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રી વતી હું આપનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા અને એક્સપોર્ટ કરતા માંગતા વેપારી મિત્રો માટે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થતી વધઘટ એક ખૂબ મોટો પ્રશ્ન હોય છે. એક્સપોર્ટનો ઓર્ડર લીધા પછી ઓર્ડર બનાવીને મોકલવા સુધીમાં ભાવમાં ખૂબ મોટી વધઘટ થાય તેવી સંભાવના રહેલી હોય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે ગુજરાતની અંદર જે પ્રમાણે ડાયમંડ જ્વેલરી, સિલ્વર જ્વેલરીનું મેન્યુફેક્ચરિંગ સુરતની અંદર જ વધતું જાય છે. આજે સુરતની અંદર જ MSME સેક્ટર સાથે 450 કરતા વધારે લોકો અત્યારે જ્વેલરીનું કામ કરી રહ્યા છે. આ લોકો માટે સોના અને ચાંદીના ભાવની અંદર થતી વધઘટ એને સમજવી ખૂબ જરૂરી હોય છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને GGEPC મારફતે આજે આપણે મેક્સના શ્રી આમ્રપાલજીનું ખૂબ સારું માર્ગદર્શન મળી રહેશે એવી મને અપેક્ષા પણ છે. આ મુશ્કેલીને ધ્યાનમાં રાખીને GGEPC દ્વારા આજના આ વેબિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી એક્સપોર્ટ મિત્રો મેટલ હેજિંગ એટલે કે સોના અને ચાંદીમાં હેજિંગ કઈ રીતે ઉપરોક્ત રિસ્કનું નિવારણ કરી શકીએ એમનું માર્ગદર્શન આપણને પણ આજે આ વેબ સેમિનારના માધ્યમથી મળી રહેશે. આ સાથે વધુ સમય નહીં લેતા ફરી એકવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને GGEPCના આમંત્રણને માન આપી આપ સમય ફાળવા બદલ હું મેક્સના અધિકારીઓનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને સાથે સાથે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આજે વેબ સેમિનારમાં જોડાયેલા મારા જ્વેલર્સ મિત્રોને પણ હું જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ વતી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મને આશા અને અપેક્ષા છે કે આજના સેમિનારમાંથી આપણને કંઈક આપણા ઉદ્યોગના પ્રગતિની અંદર કંઈક માર્ગદર્શન મળી રહેશે. એની માટે સૌ સાથે મળીને ચાલો આપણે આજના આમ્રપાલસિંહજીનું માર્ગદર્શન મેળવીએ. थैंक यू सो मच दिनेश भाई. आज जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग MCX के थ्रू कैसे हेजिंग कर सकते हैं, उस पे श्री आम्रपाल सिंह जी सीनियर मैनेजर MCX PMT बुलियन हमें गाइडेंस देने वाले हैं. तो ज्यादा समय ना लेते हुए आम्रपाल सिंह जी प्लीज द फ्लोर इज योर्स. थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू रजत भाई. Yeah, Rajat bhai, is the screen visible to you, Rajat bhai? Yes, clear. Yeah, fine. So, friends, आप देख सकते हैं मेरे virtual background में sir, this to all of you that कि आज जो है this week every year this week is celebrated this week either in October or in the November month is celebrated as a SEBI World Investor Week.
where from 22nd of November to 28th of November, this week has been celebrated as a SEBI Investor Week. So to start off with, SEBI Security Exchange Board of India is a regulator of commodities market, equities market, currency market. One of the very aggressive and very prompt and very stringent regulator of the financial markets. एंड उसके साथ साथ दोस्तों ये सेबी काफी अच्छे स्टेप लिए हैं, जैसा कि ऑप्शंस अलाउ कर दिया, कमोडिटीज में इंडेक्स अलाउ कर दिया और कुछ सेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स अलाउ कर दिया। तो सेबी आने के बाद काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं मार्केट डेवलपमेंट के लिए और ये काफी एग्रेसिव मूव है सेबी का। सो उसके साथ साथ हम लोग हमारा पीपीटी एक बार स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एमसीएक्स आपको पता है कि बेंचमार्क है। एमसीएक्स में सोने चांदी का जो प्राइस आता है, चाहे वो गोल्ड का हो सिल्वर का हो, उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। गोल्ड प्राइस में आपका यूएसडी आईएनआर, इंपोर्ट ड्यूटी, प्रिवेलिंग ये जो प्रीमियम डिस्काउंट, ऑल सारे के सारे इंपोर्टर, बुलियन ट्रेडर, ब्रांडेड ज्वेलर, रिटेल ज्वेलर, हर कोई एक्सपोर्टर, हर कोई इस्तेमाल करता है एमसीएक्स के प्राइजेस को। एंड सिमिलरली एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है सीएमए के साथ, अराउंड 99.25%, और डोमेस्टिक स्पॉट के साथ भी अराउंड 99% के आसपास अपना कोरिलेशन है। एंड पॉजिटिव पॉइंट इज लाइक कमोडिटीज मार्केट जो एमसीएक्स का है, दैट इज मॉर्निंग 9 to 11:55 इसका ट्रेडिंग आवर्स है। सो मेजर मार्केट्स है, यूएस भी इसमें कवर हो जाता है इवनिंग का टाइमिंग में। सो ये प्लस पॉइंट है, मेजर मार्केट्स कवर करता है एमसीएक्स की ट्रेड टाइमिंग्स। दोस्तों आपको पता ही है, काफी ज्वेलर्स भाइयों के जो काम का है वो है 100 ग्राम और 1 kg। उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स भी 1 ग्राम और 8 ग्राम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गोल्ड के केस में हमारे पास 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 1 ग्राम का प्राइस कोट है और लॉट साइज है 1 ग्राम का, ₹1 हर देते। सिमिलरली 8 ग्राम का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 8 ग्राम का प्राइस है और लॉट साइज भी 8 ग्राम का है और सिमिलरली ₹1 हर देते। और गोल्ड मिनी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें स्क्रीन पे 10 ग्राम का प्राइस है और 100 ग्राम का ट्रेडिंग यूनिट है और ₹1 ₹10 हर देते। और हमारा जो 1 kg जो बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 ग्राम का स्क्रीन पे प्राइस चलता है और 1 किलो का ट्रेडिंग यूनिट है। और सिमिलरली आपका ₹100 का टिक साइज है, सो ₹1 की हार देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ अपना गोल्ड तो है ही है, साथ में काफी लोग सिल्वर भी रखते हैं, यूटेंसिल सिल्वर की ज्वेलरी होती है। और राजकोट काफी बड़ा राजकोट भी काफी बड़ा सिल्वर मैन्युफैक्चरर हब है। सो उसमें सिल्वर में हमारा 30 kg सिल्वर मिनी 5 kg और सिल्वर माइक्रो 1 kg है। सो उसके चलते आपका स्क्रीन पे जो प्राइस है वो 1 kg का है तीनों का, और स्क्रीन पे आपको जो दिख रहे हैं प्राइस वो 1 kg के हैं। और इसमें 1 kg में कॉन्ट्रैक्ट में ₹1 हर देते हैं, 5 किलो के कॉन्ट्रैक्ट में ₹1 5 हर देते हैं, 30 kg जो बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट है उस पे ₹1 हर देते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप पूछेंगे कि मुझे आज ट्रेड करना है या मुझे आज हेज करना है तो मैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट में हेज करूं। सो आज जो है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 2021 का आज उसका आखिरी डेट है और मंडे से वो टेंडर पीरियड, डिलीवरी पीरियड में चला जाएगा। तो आज के लिए आपको अगर हेज करना है, ट्रेड करना है, ट्रेडिंग का मैं एग्जांपल लूंगा, मकसद हमारा हेजिंग का है। सो आज अगर आपको ट्रेड करना है तो जो 1 kg कॉन्ट्रैक्ट है वो दिसंबर में करेंगे आप ट्रेड, और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद अप्रैल है, उसके बाद जून है, अगस्त है। साल में 6 कॉन्ट्रैक्ट है 1 kg के। और मिनी, गिनी और पेटल जो 1 ग्राम, 8 ग्राम और 100 ग्राम है उसके मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स है। और 100 ग्राम और किलो 5th ऑफ एवरी मंथ एक्सपायर होंगे, एवरी 1 kg अल्टरनेट मंथ। और मिनी जो है हर महीने में 5 तारीख को एक्सपायर होगा। और ये जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट है 1 ग्राम और 8 ग्राम वो लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे। जैसा कि ट्रेडिंग यूनिट और कोटेशन हमने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ जो हमारा पेटल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्स मुंबई है, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्स अहमदाबाद है। जो गुजरात की जनता है, गुजरात की जनता को थोड़ा ये एडवांटेज है कि एक्स अहमदाबाद है। सो गुजरात की जनता को इसका फायदा उठाना चाहिए। डिलीवरी बेस्ड काम अगर आप करते हैं तो गुजरात में ही है, अहमदाबाद से गुजरात के कोई भी शहर में डिलीवरी आनी काफी इजी है। सो गुजरात वालों को ये फायदा उठाना चाहिए डिलीवरी बेस्ड काम करने के लिए भी। हेजिंग तो आप फायदा उठाओगे, ऑल इंडिया सब करते हैं, ऑल इंडिया से भी माल जाता है
अहमदाबाद से पूरे हर शहर में जहाँ रिक्वायरमेंट है, जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसका डिमांड है। लेकिन गुजरात को फायदा है कि वो अहमदाबाद से डिलीवरी सेंटर्स नजदीक है बड़े बड़े शहरों में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो बेस प्राइस है, बेस प्राइस लिमिट है, वो 3% की है। और जो मार्जिन है जिसके हम बोलते हैं कि ये फ्यूचर्स है, ये स्पॉट नहीं है दोस्तों, ये फ्यूचर्स है। तो फ्यूचर्स में अगर आप काम करते हो तो आपको स्पॉट जैसा पूरे पैसे नहीं देने पड़ते। इसमें काम करने के लिए फ्यूचर्स में, चाहे आपने लॉन्ग किया हो चाहे आपने शॉर्ट किया हो, आपने उसमें आपको मार्जिन देना पड़ता है। मार्जिन कितना है? 6% मिनिमम मार्जिन है और 1.25% ईएल है, तो 7.25% आपकी मार्जिन है। और जहां पर आपने खाता खुलवाया होगा, जहां पे आप ट्रेड, जहां पर आप हेजिंग कर रहे होंगे, वहां पर वो कम से कम 2 से 3% एक्स्ट्रा मार्जिन लेगा एज पर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, क्योंकि रात के समय मूवमेंट होता है ये मार्केट में, आफ्टर यूएस स्टार्ट होता है। सो बैंकिंग आवर्स बंद होने के कारण वो आपसे ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर वो 2 से 3% एक्स्ट्रा मार्जिन रिस्क मैनेजमेंट के तहत वो एक्स्ट्रा ले सकता है। सो आपकी मार्जिन इन एंड आउट 7.5 से 10% के आसपास आपको मार्जिन लगती है। और जैसा कि ये स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड है, जैसा कि मंडे से दिसंबर 3 इसकी एक्सपायरी है 1 kg कॉन्ट्रैक्ट की और 100 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट की। सो मंडे से, दैट इज 29 नवंबर से इसका डिलीवरी पीरियड चालू हो जाएगा। तो मंडे के दिन जितनी भी आउटस्टैंडिंग पोजीशन होगी बाई साइड पे, उसको डिलीवरी लग जाएगी। और मंडे से लेके 3 दिसंबर तक ये ट्रेडिंग पीरियड जो होगा, इसको टेंडर पीरियड बोलते हैं, जिसमें जिसको डिलीवरी में इंटरेस्ट है उनकी पोजीशन होती है, और जिसको हेज करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाना है वो रोल ओवर करके फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे, और मिनी में रोल ओवर करके जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे। सो आने वाला जो हफ्ता है, जिसको डिलीवरी ट्रांजेक्शन करना है, जिसके पास माल पड़ा है वो डिलीवरी दे सकता है एमसीएक्स में, और जिसको माल लेना है वो माल ले सकता है आने वाले हफ्ते में, क्योंकि जो डिलीवरी पीरियड होता है जो 5 डेज का होता है, बिकॉज ये फ्यूचर्स मार्केट है, ये स्पॉट नहीं है। सो महीने के आखिरी 5 दिन में डिलीवरी होती है। वो पीरियड मंडे से शुरू हो रहा है, 29, 30, 1, 2, 3 5 दिन डिलीवरी पीरियड है, और डेली 5% मार्जिन बढ़ती जाएगी। सो 25% आखिरी दिन पे होगी, और साथ में एग्जिस्टिंग आपकी 7.25% मार्जिन लगती जाएगी। डिलीवरी लॉजिक कंपलसरी है, देयर इज बायर डिफॉल्ट नॉट अलाउड, और सेलर डिफॉल्ट करता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है 3%, 1% बायर को पास ऑन हो जाती है, उसके बारे में हम देखते हैं आगे। सिमिलरली जो डिलीवरी सेंटर है वो अहमदाबाद है, और एडिशनल डिलीवरी सेंटर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, चेन्नई एंड कोची है। एंड इसमें भी आपका बाय डिफॉल्ट गिनी में अहमदाबाद है, और पेटल में आपका मुंबई है, और एडिशनल डिलीवरी सेंटर मुंबई, दिल्ली है, और उसमें अहमदाबाद दिल्ली। सो इसमें जो प्योरिटी है फ्रेंड्स, काफी लोग पूछते हैं कि एमसीएक्स पे प्राइस चल रहा है, उसकी प्योरिटी क्या है। सो 99995 प्योरिटी है 1 kg और 100 ग्राम की, और 999 प्योरिटी है 1 ग्राम और 8 ग्राम की। और सबसे इसका कट कैसे आता है, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कैसे सेल करते हो, ये प्रश्न भी बहुत आता है कि आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट है December 3 को एक्सपायर हो रहा है, आपका सेटलमेंट कैसे होता है। तो सेटलमेंट जो होता है वो आखिरी 3 दिन का सिंपल एवरेज स्पॉट प्राइस से होता है। 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, ये 3 दिन का सिंपल एवरेज से आपका इवनिंग सेशन का, इससे आपका एमसीएक्स का जो ड्यू डेट रेट बोलिए या फाइनल सेटलमेंट प्राइस आता है। सो दिस इज जो सेटलमेंट होता है वो अहमदाबाद स्पॉट प्राइस से होता है। सिल्वर में साल में 5 ही कॉन्ट्रैक्ट है, मार्च में, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। सो अभी December 3 को एक्सपायर हो रहा है 30 kg वाला, और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है 5 दिन पहले एक्सपायर होता है। तो इसमें 5 दिन पहले, सो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त एंड नवंबर, दोनों में जो हमारा एक्सपायरी डेट है वो 5th ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट मंथ है। हर महीने 5 तारीख को, सॉरी हर महीने नहीं, 5 कॉन्ट्रैक्ट है, सो 5th ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ। सिमिलरली इसमें आखिरी दिन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी मंथ। ट्रेडिंग यूनिट 30 kg है, ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा उसमें डिटेल में। चांदी में जो 1 kg, 5 kg, सिल्वर के जो प्राइस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, वो सारे प्राइस जो है सब कुछ इंक्लूडेड है एक्स अहमदाबाद। सिर्फ जब आप डिलीवरी का ट्रांजैक्शन करते हो, जो कि आप मंडे से करोगे, अगर आपको जरूरत है तो डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हो तो जीएसटी आता है 3%, अदरवाइज इसमें प्राइस के अंदर जीएसटी एडेड नहीं है। जब आप डिलीवरी आपको लगती है तब जीएसटी फैक्टर इन होता है, उसका 3% आपको जीएसटी आपको देना पड़ता है। और सिमिलरली बेस प्राइस जो है इसका, जो बेस प्राइस लिमिट है वो 4% है। सिल्वर में मार्जिन थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू गोल्ड, इसमें 10% मिनिमम मार्जिन है और 1.25 ELM, सो 11.25% मार्जिन लगती है। सिमिलरली सिल्वर में जो डिलीवरी पीरियड है वो 5 डेज का डिलीवरी पीरियड है,
जैसा कि गोल्ड का है, सेम टू सेम लॉजिक सिल्वर का भी है। और आखिरी 5 दिन में वो इंक्रीमेंटल मार्जिन होती है 5% से बढ़ते हुए आखिरी दिन 25%। और जो डिलीवरी लॉजिक है इसका भी कंपलसरी डिलीवरी लॉजिक है, और इसके डिलीवरी सेंटर बाय डिफॉल्ट अहमदाबाद है, और बाकी एडिशनल में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, आगरा, सेलम, राजकोट एंड जयपुर। और चांदी में जो स्क्रीन पे आपको भाव दिख रहा है वो चांदी में 995 नहीं आता है, सिर्फ 999 फाइनेंस है। और जो सारे बार दिख रहे हैं आपको एलबी में अप्रूव्ड बार्स हैं, और सिर्फ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी के तहत हमने कुंदन और एमडी की रिफाइनरी के 100 ग्राम के बार अप्रूव किए हैं, और भी रिफाइनरीज के पाइपलाइन में है, जल्द से जल्द वो भी रिफाइनरी अप्रूव हो जाएगी। सो फिलहाल हमने 100 ग्राम में उनको प्रोविजन दिया है, जिसका स्टैंडर्ड हम बोलते हैं एमसीएक्स अप्रूव्ड बीआईएस स्टैंडर्ड। सो ये स्टैंडर्ड से हमने कुंदन और एमडी को हमने अप्रूव करके 100 ग्राम में वो डिलीवरी दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ और सिर्फ एलबी में अप्रूव्ड सप्लायर्स है सिल्वर में, और गोल्ड में एलबीए में एमिरेट्स रिफाइनरी, और तीसरा ये 2 रिफाइनर जो मैंने नाम लिए उनको हमने अप्रूव किया, और काफी रिफाइनर्स पाइपलाइन में है, उनका भी जल्द से जल्द हम अप्रूवल प्रोसेस कर देंगे। सिमिलर टू गोल्ड, सिल्वर का भी कट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो कटता है, जैसा December 3 कॉन्ट्रैक्ट इसकी एक्सपायरी है, सो 3 दिसंबर को ये एक्सपायर होगा और सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट। सो उसका 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर को सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ अहमदाबाद स्पॉट प्राइस ऑफ सेकेंड सेशन में आपका सिल्वर एक्सपायर होगा। सो ये आपके काम की चीज है। काफी ज्वेलर्स हेजिंग क्या है थोड़ा कोशिश करते हैं और अच्छी से समझाने की हेजिंग का मतलब क्या है। सो हेजिंग जो है दोस्तों, सबसे पहले आपकी अगर स्टॉक पड़ा है तो स्टॉक को हेज करने के लिए, स्टॉक आपका शोरूम में पड़ा है तो उसको हेज करने के लिए आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करोगे एमसीएक्स में। सेकेंडली, वो स्टॉक अगर आपका कोई कारण से स्टॉक आपका डिप्लीट हो जाता है या आपको प्राइस अच्छा लगता है कि काफी नीचे आ गया है 1000-2000, मुझे आज जरूरत नहीं है, 15-20 दिन बाद, महीने बाद जरूरत पड़ जाएगी, सो मैं उतना जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उतना मैं हेज करके एमसीएक्स में लॉन्ग पोजीशन इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो हेजिंग का एग्जांपल लेते हुए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि समझने का, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ज्वेलर्स के लिए। सो मान लीजिए ज्वेलर्स, एक ज्वेलर की शॉप में कस्टमर आता है, कस्टमर आके बोलता है 48,000 का प्राइस चल रहा है गोल्ड का। कस्टमर आता है बोलता है कि आप मुझे ये लीजिए 5 लाख रुपए और 48 लाख की ज्वेलरी मुझे 20 दिन बाद बना के दे दीजिए। 48,000 का भाव फिक्स हो गया, ये लीजिए 5 लाख रुपया, मुझे 1 किलो की ज्वेलरी आप 20 दिन बाद बना के दे दीजिए। तो हमें सब पता है, ज्वेलर्स को पता है कि जो ज्वेलरी बनने का साइकिल है वो 4 डेज, 7 डेज या मैक्स टू मैक्स 10 डेज का है। तो मैं अपना आज पैसा क्यों ब्लॉक करूं? तो उसकी जगह पे जहां मुझे 48 लाख में फिजिकल गोल्ड खरीदना पड़ रहा है, उसकी जगह पे मैं एमसीएक्स खरीदूंगा। एमसीएक्स क्यों खरीदूंगा? क्योंकि एमसीएक्स में पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, एमसीएक्स में मार्जिन देनी पड़ती है। कितनी मार्जिन देनी पड़ती है? एग्जांपल 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में मुझे मार्जिन देनी पड़ती है, और वो कस्टमर ने आके मुझे एडवांस दे दिया है, 20 दिन बाद बोला मैं 1 किलो ज्वेलरी लेकर जाऊंगा, और 48,000 का जो आपका ऑर्नामेंट का प्राइस फिक्स हुआ है उसके सामने आपको 1 kg का फिजिकल गोल्ड खरीदना होता है। उसकी जगह पे आप बोलोगे कि यार मुझे तो पता है कि ये तो 20 दिन बाद आएगा कस्टमर, सो मैं आज उसका क्यों, मैं उसका 1 kg का गोल्ड को मेल्ट करके ज्वेलरी बना के रेडी कर दूं। तो मैं 10 दिन बाद खरीदूंगा और 10 दिन में मैं उसको डिलीवरी दे दूंगा, 20वें दिन में उसको डिलीवरी दे दूंगा। सो मुझे 10 दिन का इंटरेस्ट सेविंग होता है। वो यूज करने के लिए आप फिजिकल में खरीदने की जगह एमसीएक्स में खरीदते हो। क्यों एमसीएक्स में खरीदते हो दोस्तों? क्योंकि आपने कस्टमर को प्राइस फिक्स कर दिया है, 48,000 का प्राइस फिक्स कर दिया है, तो प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, अगर प्राइस नीचे आएगा तो आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सो आपने एक गोल्ड फ्यूचर खरीद लिया 47,800 में, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 47,800 एमसीएक्स है, 48,000 स्पॉट है। यहाँ पर फ्यूचर जो है एमसीएक्स 200 रुपया सस्ता है कंपेयर टू स्पॉट। आपका स्पॉट हाजिर जो चल रहा है 48,000 है, वो 200 रुपया महंगा है। सो जैसे ही ऑर्डर आया, आप 48,000 में आपने सामने एमसीएक्स फ्यूचर्स खरीद लिया। सो पहला सिनेरियो, 2 सिनेरियो होंगे, या तो भाव ऊपर जाएगा या तो भाव नीचे आएगा। तो फर्स्ट सिनेरियो 48,000 का स्पॉट था, भाव हो गया 47,600,
पहले दिन आप 48,000 में खरीदने वाले थे, अब 10वें दिन जाके आप 47,600 में खरीद रहे हो, तो आपको फायदा हुआ 400 रुपीज। किस में फायदा हुआ? फिजिकल गोल्ड में। सिमिलरली फ्रेंड्स, आपने गोल्ड फ्यूचर्स खरीदा हुआ है 47,800 में, भाव नीचे आ गया स्पॉट का, तो फ्यूचर्स भी नीचे आ गया, तो 47,400 प्राइस हो गया इसका गोल्ड का फ्यूचर्स का, एमसीएक्स का। सो आपको एमसीएक्स आपने 47,800 में खरीदा था, भाव हो गया 47,400, आपको 400 रुपया नुकसान हो गया, नेट इफेक्ट जीरो। आपको फिजिकल में फायदा हो गया, एमसीएक्स में नुकसान हो गया, नेट इफेक्ट जीरो। दूसरा सिनेरियो, 48,000 स्पॉट चल रहा है, भाव हो गया 48,400, आपको 400 रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि जहां पहले दिन 48,000 में आप 1 kg सिल्वर 1 kg गोल्ड ले रहे थे, वही आप 48,400 में आपको खरीदना पड़ रहा है, तो आपको 400 रुपीज आपका नुकसान हो गया फिजिकल गोल्ड पे। सिमिलरली एमसीएक्स आपने लिया हुआ था 47,800 में, और फ्यूचर्स का भाव हो गया, भाव ऊपर चला गया, तो भाव हो गया 48,200। सो 400 रुपया आपको फायदा हुआ। 47,800 में फ्यूचर लिया है, 48,200 हो गया, 400 रुपये एमसीएक्स पे फायदा हुआ, नेट इफेक्ट जीरो। फिजिकल में नुकसान हुआ, एमसीएक्स में फायदा हुआ, नेट इफेक्ट जीरो। ये जीरो रहेगा क्योंकि 200 रुपया बेसिस रिस्क जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इसके लिए वो जीरो इफेक्ट आपको दिख रहा है एग्जांपल के तौर पे। अब दूसरा सिनेरियो दोस्तों, पहला सिनेरियो था जिसमें कस्टमर आया, उसने बोला मैं 48,000 का प्राइस में लेकर जाऊंगा, ये लीजिए आपका मार्जिन, और 48,000 के भाव में मैं आपको लेकर जाऊंगा। 48,000 के प्राइस में मैं आप 48,000 के प्राइस में, सॉरी फ्रेंड्स, मैं फिर से बोलता हूं फ्रेंड्स, 48,000 के प्राइस में कस्टमर आया था, कस्टमर फिक्स करके गया था। ये एग्जांपल में प्राइस अनफिक्स्ड है। कस्टमर आया, वो बोला कि 20 डेज के बाद जो भी प्राइस रहेगा वो मुझे दे देना। सो प्राइस इज नॉट फिक्स, सिनेरियो चेंज हो गया। वहां पर आया था, उसने सिनेरियो 48,000 का दिया, यहाँ पर आया उसने सिनेरियो दिया, दूसरा सिनेरियो दिया कि मैं आप एडवांस ले लीजिए, 20 दिन बाद आके मैं ज्वेलरी ले जाऊंगा, लेकिन प्राइस फिक्स मत कीजिए। सो इस केस में फ्रेंड्स, इस केस में आपके पास 10 डेज, आपके पास प्राइस फिक्स नहीं है। सो आपको ये आपके पास आपका प्राइस फिक्स नहीं है, सो आपको खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। सीधा 10th डे में आपको खरीदारी करनी है, 10th डे में आपने जाके सीधा 48,000 में आपने गोल्ड बार खरीदा, और सामने एमसीएक्स फ्यूचर्स बेच दिया आपने 47,800 में। क्यों बेचा? क्योंकि 48,000 में आपने गोल्ड लिया है, अगर प्राइस नीचे चला गया तो आपको कस्टमर को नुकसानी में बेचना पड़ेगा, इसीलिए आपने वो उससे बचने के लिए एमसीएक्स आपने फ्यूचर्स बेचा। सो पहला सिनेरियो, भाव नीचे हो गया, 48,000 में आपने फिजिकल गोल्ड लिया है, भाव हो गया 47,600। सो आपका जो इफेक्ट है, आपको 400 रुपीज का नुकसान हो गया, क्योंकि कस्टमर को आपने बोला था कि 20 दिन बाद जो प्राइस होगा वो प्राइस पे दूंगा, तो 20 दिन बाद ये प्राइस आया, तो आपने ये प्राइस में फिजिकल गोल्ड खरीदा, तो आपको नुकसान हो गया। लेकिन सामने आपने पैरेलली एमसीएक्स बेचा था 47,800 में, एमसीएक्स अभी आप खरीद रहे हो 47,400, भाव नीचे आ गया, एमसीएक्स में आपको 400 रुपया फायदा हो गया, नेट इफेक्ट जो है आपका जीरो। सिमिलरली फ्रेंड्स, भाव ऊपर चला गया, अब भाव ऊपर चला गया तो इस सिनेरियो में आपको एमसीएक्स हेज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें नहीं पता भाव ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सो 48,000 में आपने खरीदा है फिजिकल गोल्ड, भाव हो गया 48,400, आपको 400 रुपया मुनाफा हुआ। सो क्लाइंट को जो आपने बेचा तो आपको 400 रुपया फिजिकल में मुनाफा हुआ, लेकिन सामने आपने 47,800 में एमसीएक्स बेचा था, 4200 हो गया एमसीएक्स, तो एमसीएक्स में आपका नुकसान हो गया, नेट इफेक्ट जीरो। सो ये सिनेरियो है दो, जिसमें ज्वेलर जो है अपना हेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेन पर्पस है हेजिंग का, ज्वेलर को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सिमिलरली फ्रेंड्स, एक ऑप्शंस कंसेप्ट है, ऑप्शंस को भी परमिशन मिला है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अब ये कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या है? सो मैं एग्जांपल, आपको करना हेजिंग ही है, मैं एग्जांपल ट्रेडिंग कर दूंगा सो दैट आपको समझने में आसानी होगी, लेकिन आपको करना हेजिंग ही है, आपको ट्रेड नहीं करना है इसमें, एग्जांपल में ट्रेडिंग कर लूंगा। सो कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेते हुए, कॉल ऑप्शन खरीदा है, इसका मतलब मैंने तेजी की है, कॉल ऑप्शन बेचा है, मैंने मंदी की है। पुट ऑप्शन खरीदा है, मैंने मंदी की है, पुट ऑप्शन बेचा है, मैंने तेजी की है। सो ये एक बेसिक इसका टर्मिनोलॉजी है टू मेक इट सिंपलर। सो ऑप्शन बायर जो है, एग्जांपल के तौर पे 48,000 का भाव चल रहा है गोल्ड का, प्रीमियम चल रहा है 500 रुपया, एक्सपायरी पे भाव हो गया 50,000,
सो आपको 2000 माइनस 500, 1500 रुपया आपको मुनाफा हुआ। अब 1500 रुपया मुनाफा हुआ, बायर ने प्रीमियम भरा था 500 रुपया, सेलर ने प्रीमियम रिसीव किया था, बायर ने 50,000 500 48,000 में लिया था 500 रुपया देके, भाव हो गया 50,000, 1500 रुपया बायर को फायदा हुआ एक्सपायरी पे। सो इस केस में सेलर जो है वो बैकआउट नहीं कर सकता है, सेलर को कंपलसरी उसको ऑब्लाइज करना है। बायर के पास ऑप्शन है, उसको 1500 रुपये मुनाफा हुआ, सेलर को चुकाना है उसका मुनाफा। दूसरा, अगर भाव 46,000 हो गया, 2,000 रुपया नीचे आ गया, सो आपका बायर का जो मैक्सिमम लॉस है, वो लॉस जो है वो प्रीमियम पेड विच इज 500 रुपीज। चाहे भाव 45,000 भी हो जाए तो बायर का मैक्सिमम जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का लॉस है जो प्रीमियम उसने भरा है। लेकिन सेलर जो है उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो बायर के पास राइट है, वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है, वो इन द मनी है तो जरूर एक्सरसाइज करेगा। सेलर के पास कोई चॉइस नहीं है, सेलर को ऑब्लाइज करना पड़ता है कि क्योंकि बायर एक्सरसाइज कर रहा है, डिमांड कर रहा है, तो सेलर को देना पड़ेगा, सेलर के पास कोई चॉइस नहीं। सिमिलरली पुट रिवर्स है, पुट आप खरीदते हो दैट मीन्स आप मंदी कर रहे हो, पुट बेचते हो मीन्स आप तेजी कर रहे हो। सो पुट आपने बेचा है तो सामने वाले सेलर को लेना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मान लीजिए 50,000 पे 500 रुपये प्रीमियम चल रहा है, भाव हो गया 48,000, तो आपका 2,000 प्रॉफिट हुआ, 2,000 माइनस 500, 1,500 रुपये आपको प्रॉफिट मिला। और भाव अनफेवर हो गया, मान लीजिए भाव 52,000 हो गया, तो भी आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 500 रुपीज है जो कि आपने प्रीमियम पे किया। सो ये ऑप्शन प्राइस बोलिए या ऑप्शन प्रीमियम बोलिए, टर्मिनोलॉजी है। एक्सपायरी डेट होता है। व्हाट इज एक्सपायरी डेट? एक्सपायरी डेट का मतलब यह है कि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो था फ्यूचर्स का, उसका जो इसका जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट था फ्यूचर्स का, उसका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है विच इज नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका 8 दिन पहले एक्सपायर होगा। सिमिलरली स्ट्राइक प्राइस जो है 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है सोने का, और 250 रुपए स्ट्राइक प्राइस है सिल्वर का। और इसमें ओपन इंटरेस्ट जैसा फ्यूचर्स में काउंट होता है वैसे इसमें भी काउंट होता है। सिमिलरली ये जो टर्मिनोलॉजी है इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये टर्मिनोलॉजी है ऑप्शन की। सो अगर आपका आपने 48,000 में लिया, 500 रुपया देके 50,000 हो गया तो वो इन द मनी है। सिमिलरली आपने 48,500 में लिया और वापस से अगले दिन सेम ही भाव है 48,000 का प्रीमियम का 500 रुपया, तो वो एट द मनी हो गया, सेम प्राइस है, सेम भाव हो गया। और 48,000 में लिया, 500 रुपये आपका कॉल का प्रीमियम वैल्यू है, और अगर भाव हो गया 47,000 तो वो आपका जो कॉल है वो आउट ऑफ द मनी है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जितना समय आपका कॉल और पुट इन द मनी है उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपका डिलीवरी सेटलमेंट मैकेनिज्म हो गया इसका ऑप्शंस का। सो 3 दिन पहले मैंने, जैसा मैंने बताया, टेंडर पीरियड के 3 दिन पहले, मैंने एक्सपायरी के 8 दिन पहले ये एक्सपायर होता है ऑप्शंस। और ये सारा कुछ इसका जो बेंचमार्क है, जो अंडरलाइंग है, वो फ्यूचर्स है। इक्विटी में आप देखते हो वो स्पॉट होता है, पर एमसीएक्स में अभी स्पॉट परमिशन नहीं है, बहुत जल्द फ्यूचर में परमिशन दे देगा रेगुलेटर। सो इसमें स्पॉट नहीं है, इसमें फ्यूचर्स प्राइस है, तो इसका जो बेंचमार्क है अंडरलाइंग है वो फ्यूचर प्राइस है। सो एक्स अहमदाबाद एवरीथिंग इंक्लूसिव, जीएसटी नहीं है, जीएसटी जब डिलीवरी पीरियड होता है तब होता है। इसमें डिलीवरी पीरियड का कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपका अगर आउटस्टैंडिंग पोजीशन रह जाता है ऑप्शन में, चाहे सोने में या चांदी में, तो ऑटोमेटिकली वो डिवॉल्व होकर फ्यूचर्स में पोजीशन बन जाती है। सो इसमें आपको डिलीवरी आपको लग जाएगी, उसका आपको डर करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन होगी वो ऑटोमेटिक डिवॉल्व होगी फ्यूचर्स में। जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो आउट ऑफ द मनी है, वो बाय डिफॉल्ट वर्थलेस जाएंगे। सो जो रेगुलेटर है वो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन का ही परमिशन देता है, और 25 जो स्ट्राइक्स है वो आईटीएम और ओटीएम है गोल्ड के केस में, और 1 एटीएम स्ट्राइक्स है, माने जो मूव करेगा गोल्ड 50,000, 100, 50,000, 200, 50,000, 300, ये 100 रुपए की स्ट्राइक है। सिमिलरली सिल्वर की जो स्ट्राइक्स है वो 250 रुपए की स्ट्राइक है। सो उसमें भी सिल्वर में 50 आईटीएम और 50 ओटीएम स्ट्राइक्स अवेलेबल होंगी। सो आपका सिल्वर का लेट्स से प्राइस 60,000 है, तो 60,250, 60,500 ऐसा उसके स्ट्राइक्स अवेलेबल हैं। टिक साइज है 0.50 पैसा, उसका भी 0.50 पैसा। 1 रुपी मूवमेंट विल फेच यू around 50 rupees, 50 paisa movement will fetch you 50 rupees, and 50 paisa movement in silver will fetch you around 15 rupees. So ये इसका जो मॉडल है वो चलता है ब्लैक 76 मॉडल से। सिमिलरली जो प्रीमियम आपको देना पड़ता है बायर को और सेलर को मार्जिन देनी पड़ती है, मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 5% मार्जिन है। सो फ्यूचर्स के मुकाबले इसमें मार्जिन कम लगती है अगर आप ऑप्शन शॉर्ट करते हो तो।
और 2x पोजीशन अलाउड है, जितने भी फ्यूचर्स में लिमिट्स अलाउड है इसमें 2x पोजीशन अलाउड है। और सेटलमेंट जो है सिमिलर टू फ्यूचर्स, T+1 बेसिस है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है, जो MTM पोजीशन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट के सामने एडजस्ट हो जाती है ऑप्शंस में। और ये जैसा कि मैंने बताया, ऑप्शंस एक्सरसाइज होता है लास्ट डे जिसपे एक्सपायर होता है, उसमें जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो डिवॉल्व हो जाते हैं फ्यूचर में। मान लीजिए कॉल आपने खरीदा हुआ है और आप इन द मनी हो, तो कॉल आपका लॉन्ग फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉल अगर बेचा हुआ है, इन द मनी है, तो शॉर्ट फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपने पुट खरीदा हुआ है तो वो शॉर्ट फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपने पुट बेचा हुआ है तो वो शॉर्ट वो लॉन्ग में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, डिवॉल्व हो जाएगा फ्यूचर्स में एक्सपायरी वाले दिन। ये हमने डिस्कस कर लिया था। सो बुलियन डीलर या ज्वेलर फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम देने के लिए ये इस्तेमाल कर सकता है। पुट का मतलब पुट खरीदा माने मैंने मंदी की, पुट बेचा माने मैंने तेजी की। एग्जाम्पल के तौर पे करना आपको हेजिंग ही है। सो ये बुलियन डीलर को रिस्क रहता है प्राइस नीचे जाने का। 45,000 में उसका माल पड़ा है तो उसने पुट खरीद लिया नीचे का भाव जाने के लिए, और भाव अगर ऊपर चला गया तो उसका मैक्सिमम जो लॉस है वो 4.5 रुपया है, सॉरी 450 रुपया है। और पुट ऑप्शन में अगर वो प्राइस नीचे चला गया तो उसको फिजिकल में नुकसान हुआ, लेकिन सामने उसको ऑप्शंस में फायदा हुआ तो उसका सामने फॉरफिट हो गया। इसमें M2M नहीं लगता। सो ये ऑप्शंस का पे ऑफ है फ्रेंड्स। ये 45,000 में मैंने पुट लिया है। पुट लिया है माने मैंने अपनी मंदी सिक्योर की है। मुझे मंदी लग रही है तो मैंने मंदी का प्रोटेक्शन लेने के लिए मैंने पुट खरीदा हुआ है। सो वो अगर फेवर में चला गया तो मेरा ब्रेक इवन जो है 450 का 44,500 के बाद मुझे प्रॉफिट आना चालू होगा ऑप्शन से। और मेरा अगर वो फेवर में नहीं रहा, आउट ऑफ फेवर चला गया, आउट ऑफ द मनी चला गया, तो मेरा मैक्सिमम नुकसान जो है, ये एग्जांपल में 1% लिया है 45,000 के प्राइस से। सिमिलरली फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि मेरा फिजिकल स्टॉक है ज्वेलर्स का पड़ा है। सो फिजिकल स्टॉक 45,000 के भाव से पड़ा है, तो भाव अगर ऊपर जा रहा है तो मुझे मुनाफा हो रहा है, भाव अगर नीचे जा रहा है तो मुझे फिजिकल स्टॉक में नुकसान हो रहा है। और सिमिलरली अगर मैं नेट पे ऑफ देखूंगा, सो मैक्सिमम लॉस जो है, इवन दो मेरे फेवर में आ गया, मैं प्रोटेक्शन ले रहा हूँ डाउनसाइड की प्रोटेक्शन ले रहा हूँ। सामने वाले को मैं फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑप्शन दे रहा हूँ, मेरे कस्टमर को फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑप्शन दे रहा हूँ। ज्वेलर की मार्जिन 12 से 18% के बीच में है। अगर 1% में MCX को ऐसे प्रीमियम दे रहा हूँ, सो दैट इज टेकन एज ए कॉस्ट। सो मैक्सिमम जो मेरा लॉस है वो 1% है। एंड सिमिलरली अगर वो 45,500 के ऊपर चला गया, सो उसमें फिजिकल में मुझे फायदा होता जाएगा, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो फाइनल पे ऑफ होगा वो मुझे यहाँ से मिलना चालू होगा अबव 45,500। सो मुझे ये फाइनल पे ऑफ, क्योंकि फिजिकल में मुझे फायदा होता जाएगा, और मैक्सिमम लॉस जो था यहाँ पे मेरा 1% था। सो सिमिलरली फ्रेंड्स, मेकिंग चार्ज गिनी में है अराउंड 200 रुपया पर 8 ग्राम, लेकिन प्राइस में नहीं है। जब आप डिलीवरी लगती है, आपको डिलीवरी आप लेते हो, तब आपको जाके गोल्ड गिनी में 200 रुपया पर 8 ग्राम कॉइन का आपका खर्चा होता है। सिमिलरली पेटल में 100 रुपया पर 1 ग्राम मेकिंग चार्ज है। सो ये जब डिलीवरी लेते हो तब आता है। अभी जो करंट भाव चल रहा है उसके अंदर ये मेकिंग चार्ज जुड़ा हुआ नहीं है। जब आपको डिलीवरी लगती है, डिलीवरी लेते हो आप, फिर जाके आपको ये भरना पड़ता है। सिमिलरली सिल्वर 1 किलो और सिल्वर 5 किलो में भी मेकिंग चार्ज है, वो 400 रुपया 1 किलो बार पे। सिल्वर 1 किलो का बार लिया तो 400 रुपया मेकिंग है। सिमिलरली अगर 5 किलो की डिलीवरी आई आपको, 400 इंटू 5 में 2,000 रुपया मेकिंग चार्ज आपको मिनिमम देना पड़ेगा 5 किलो का। सो डिलीवरी डिटेल्स, सो डिलीवरी का एक एग्जांपल लूंगा फ्रेंड्स। डिलीवरी का एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा। तो डिलीवरी का एग्जांपल ये है कि लेट्स से आज गोल्ड का प्राइस चल रहा है 48,000 एग्जांपल। सो आज आपने 48,000 में गोल्ड बाय किया, मार्जिन देके 5% मार्जिन दी आपने, गोल्ड खरीद लिया, और आपको 29 में भी आपने 29 को मान लीजिए भाव हो गया 48,500। तो आपको पहले तो 500 रुपए का प्रॉफिट आपके खाते में जमा होगा, और 29 को 11:55 के बाद अगर आपकी आउटस्टैंडिंग पोजीशन रहेगी बाई साइड में, अगर आपको डिलीवरी लग गई तो आपको पूरा पैसा देने पड़ेगा नेक्स्ट डे, माने 30 नवंबर को आपको पूरा पैसा चुकाना होगा डिलीवरी का। आपने ऑलरेडी मार्जिन का पैसा दिया हुआ है, 30 को आपको पूरा पैसा चुकाना होगा। तो 48,000 में आपने खरीदा है, अभी का भाव जो है
और भाव हो गया 48,500, बंद आया समझ लीजिए, एक 29 नवंबर का बंद आया मंडे का, तो आपको 500 रुपया पहले तो आपके खाते में जमा होगा आरटीजीएस नेफ्ट के थ्रू। 500 इंटू 100, 50,000 रुपया आपके खाते में जमा हुआ, और डिलीवरी आपको जो मिलेगी वो 48,500 प्लस 3% जीएसटी से आपको डिलीवरी मिलेगी। ये हो गया आपका डिलीवरी का फिगर। और आपको जो पेमेंट करना है वो T+1 बेसिस पे, सेटलमेंट जो है वो T+1 बेसिस है। सो पेमेंट आपको रिमेनिंग पेंडिंग मार्जिन दिया है आपने, मार्जिन के अलावा जो एक्चुअल कॉस्ट है डिलीवरी का वो आपको नेक्स्ट डे T+1 में अराउंड 11 के पहले आपको देनी होगी, 11 AM के पहले। ये एक ये हो गया। सेकंड, आपके खाते में जो माल आएगा वो अराउंड 6 PM के आसपास आ जाएगा। मतलब आज आपने मान लीजिए मंडे को आपको डिलीवरी आ गई, तो ट्यूसडे के दिन आपको 6 बजे तक आपके खाते में माल जमा हो जाएगा अहमदाबाद में। कहां पर? डिलीवरी सेंटर अहमदाबाद है। अहमदाबाद में कहां पर है? ब्रिंग्स सीक्वल मलका अमित, जो हमारे वॉल्ट्स हैं, सब डायमंड वाले हैं, सब ज्वेलर्स वाले, ब्रिंग्स सीक्वल मलका अमित सबको पता है। वो वॉल्ट में जाके आपका जमा हो जाएगा। तो वॉल्ट से जाके फिर आपके नाम पे है डिलीवरी, 1 kg गोल्ड आपके नाम पे है, तो आपको जाके वहां जाकर लिफ्ट करना है। सो ये बिकॉज वी आर नॉट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि आपके होम डिलीवरी आएगी, सो इट्स ए डिलीवरी फैसिलिटी आपको मिलेगी, आपके नाम पे है, वो ब्रिंग्स सीक्वल मलका में किसी के भी वॉल्ट में पड़ी होगी, वहां से आपको लिफ्ट करना है। सो ये प्रोसेस है। पहला पॉइंट डिलीवरी का। दूसरा पॉइंट डिलीवरी का, 48,000 में आपने डिलीवरी लिया, 48,000 में आपने आज ट्रेड किया, 29 मंडे को बंद भाव आया गोल्ड का 47,000, 48,000 में आपने खरीदा हुआ है, मंडे को बंद भाव आया 47,000, 1,000 रुपया, 1,000 इंटू 100, 1 लाख रुपया नुकसान आपको भरना है मंडे के दिन, और 47,000 प्लस 3% जीएसटी से आपको डिलीवरी मिल जाएगी। सो ये प्रोसेस है। मैंने अपसाइड एग्जांपल लिया, डाउनसाइड एग्जांपल ये है, और प्रोसेस एकदम सेम। और दो प्रोसेस है ये कॉमर्स में, आपको दो, एक खाली एक कॉमर्स अकाउंट आपको ओपन करना होगा। एक कॉमर्स अकाउंट इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रॉनिक वॉल्ट रिसिप्ट। उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉल्ट रिसिप्ट है कॉमर्स, सो उसमें आपको दिखेगा कि आपको जो अगले दिन माल आया, आपने मंडे को ट्रेड किया, मंडे को आपने ट्रेड किया, आपको लग गया डिलीवरी, ट्यूसडे को आपने पैसे दे दिए। सो ट्यूसडे को आप बोलोगे भैया 6 बजे माल कहाँ आएगा, आपने तो बोल दिया ब्रिंक्स में पड़ा है, सीक्वल में आ गया, लेकिन माल रिफ्लेक्ट कहाँ होगा? तो वो रिफ्लेक्ट होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं, इसको हम लोग डीमैट नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसिप्ट। तो इसमें हमने कॉमर्स करके एक अकाउंट है, सिमिलर टू डीमैट बट नॉट ए डीमैट, इट्स इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसिप्ट। सो उसमें आपका कॉमर्स में आपको दिख जाएगा कि आपके खाते में 1 kg गोल्ड जमा हो गया है। सो 6 बजे के आसपास आपको ये दिख जाएगा। सो ये आपको कॉमर्स अकाउंट भी खुलवाना है, कॉमर्स अकाउंट का कोई खर्चा नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां पर भी आपने अकाउंट खुला है वो आपको कॉमर्स अकाउंट खुलवा देगा। अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन करते हो तो कॉमर्स अकाउंट कंपलसरी, अगर आप हेजिंग करते हो तो कॉमर्स अकाउंट कंपलसरी नहीं है। सिमिलरली फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने डिफॉल्ट की बात की थी, सो बायर डिफॉल्ट नॉट अलाउड, सेलर डिफॉल्ट करता है फॉर एनी कारण कुछ भी हो सकता है। देखिए कभी कभी सेलर डिफॉल्ट हो गया, इसमें डिफॉल्ट का मतलब पार्टी उठ गया वैसा नहीं है। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि फॉर एनी रीजन, कभी कभी फिजिकल में नहीं अवेलेबल होता है, मेटल अवेलेबिलिटी नहीं होती है, उसके कारण सेलर कभी कभी डिफॉल्ट कर जाता है। सो उसके चलते ही इज पेनलाइज्ड। पेनल्टी कितना है? 3% पेनल्टी सेलर से लेते हैं, 1% पेनल्टी बायर को पास ऑन करते हैं, और 1.75 सेटलमेंट गारंटी फंड में जाएगा। सिमिलरली 0.25% जो है वो एक्सचेंज रख लेगा। सो ये प्रोसेस है। अगर सेलर डिफॉल्ट करता है सो उसको हम पेनल्टी चार्ज करते हैं। सो कंपलसरी डिलीवरी है, सेलर डिफॉल्ट पे पेनल्टी है, बायर डिफॉल्ट नॉट अलाउड। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डिलीवरी फिगर्स है। आपको लगता है कि एमसीएक्स सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स और हेजिंग और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है? नहीं दोस्तों, आप उसका आपके फिजिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको आपको ज्वेलरी मेल्ट करना है, ज्वेलरी बनाना है, उसमें आपको इस्तेमाल करना है, तो आप फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं, ये फिगर दे सकते हैं। हमने 2004 से लेकर 2021 तक का फिगर है। हर कॉन्ट्रैक्ट में हमारा डिलीवरी होता है, और ये अप्रोक्सीमेटली अब तक 2004 से लेकर अब तक 125 टन हुआ है, और सिल्वर में हमारा अब तक 4,000 टन के आसपास हुआ है।
और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अगस्त 2019 में 5.2 टन हमारा हाईएस्ट हुआ था सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में अगस्त 2019 के। और सिल्वर में जो हमारा सितंबर कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 140 मेट्रिक टन का 12 ईयर हाई हुआ था। और हमारा न्यूली डिजाइंड 1 ग्राम गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 55 किलो हो चुका है सिंस अक्टूबर। सिमिलरली 1 kg कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अराउंड 31 टन के आसपास हुआ है, और 5 kg कॉन्ट्रैक्ट उसमें अराउंड 56 टन के आसपास हुआ है। सो एमसीएक्स में डिलीवरी भी होती है। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सबको लगता है कि एमसीएक्स ओनली फॉर फ्यूचर्स, एमसीएक्स में डिलीवरी होती है। तो आप जरूर इसका आपके बिजनेस के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये है वॉल्ट्स। वॉल्ट्स में ब्रिंक्स, सिक्वेल, मलकामित, ये हमारे लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है गोल्ड और गोल्ड मिनी गोल्ड गिनी के लिए। ये अप्रोक्सीमेटली खर्चा है, अगर आप एमसीएक्स के ब्रिंक्स में, सिक्वेल में या मलकामित में आपका गोल्ड पड़ा हुआ है तो एक दिन का उसका स्टोरेज कॉस्ट है 35 रुपीज पर डे पर केजी। और सिमिलरली 100 ग्राम का जो स्टोरेज कॉस्ट है वो 3.5 रुपया पर डे पर 100 ग्राम का कॉस्ट है। और ये प्रो रेटा बेसिस पे लगेगा, एक दिन का है तो एक दिन का खर्चा लगेगा, 5 दिन का है तो 5 दिन का खर्चा लगेगा, 10 दिन है 10 दिन का खर्चा लगेगा। सिमिलरली जो गोल्ड गिनी पेटल है वो 10 पैसा है पर 8 ग्राम, और इसमें 1 ग्राम का भी 10 पैसा कॉस्ट है। और चांदी में हमारा सेम ब्रिंक, सिक्वेल, मलकामित है, उसका जो कॉस्टिंग है वो 30 kg का जो बार है उसका 35 रुपीज है पर डे 90 दिन तक। 90 दिन के ऊपर 45 रुपीज का चार्ज है पर 30 kg बार। सिमिलरली 1 किलो और 5 किलो का जो कॉस्ट है, सो 1 kg का बार मिलता है तो उसके ऊपर आपका 1.25 रुपया आपका खर्चा है 1 किलो के ऊपर 90 दिन तक, और 90 दिन के ऊपर आपका अराउंड 150 रुपए का खर्चा है सिल्वर 5 kg के बार में। सो फ्रेंड्स, सेक्शन IT 43(5) एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, सेक्शन IT 43(5), जिसके चलते आपको बिजनेस इनकम में सेट ऑफ मिलता है। मान लीजिए ज्वेलरी फर्म के नाम पे आपने अकाउंट खुलवाया है और आपने एमसीएक्स में हेजिंग किया, तो उसका प्रॉफिट लॉस का आपको एडजस्टमेंट सेक्शन IT 43(5) में आपको मिलता है। इट इज नॉट टेकन एज ए स्पेकुलेटिव गेन लॉस, इट इज टेकन एज ए बिजनेस इनकम, सो आप उसको सेट ऑफ ले सकते हैं। तो ये आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सेक्शन IT 43(5) सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का। सो ये सेबी का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। सो ये गाइडलाइंस दिए हैं कमोडिटी एक्सचेंज को, जिसमें उसका डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रेंथन, स्पीडअप करने के लिए इन्वेस्टर रेड्रेसल और आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म है। और ये आपका समझ लीजिए इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल है, आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म है, एपीलेट आर्बिट्रेशन है, और ये कोर्ट लॉ अंडर सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन है। तो ये मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ दोस्तों। ये आपका प्रोसेस फ्लो है कंप्लेंट्स का। कंप्लेंट रिसीव हुआ आपका स्कोर्स के थ्रू। सिमिलरली कंप्लेंट रजिस्टर एंड सेंड टू मेंबर फॉर रिड्रेसल एंड इट शुड बी सॉल्व विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली इन केस वेयर कंप्लेंट इज नॉट रिजॉल्व विद इन 15 डेज, द सेम इज पोस्टेड फॉर IGRC. IGRC member is given time of further 15 days to pass the order in the matter. Similarly, IGRC order can be challenged by either of parties who is not satisfied by filing an arbitration application. The arbitral award to be passed within 4 months from the appointment of arbitrator. It can be challenged by either of the parties if not satisfied in appellate arbitration. Similarly, appellate arbitration award is to be passed within 3 months from appointment of arbitrators. The arbitral award, appellate award can be challenged under section 34 by either of the parties with the court of law. So ये dispute आपका कुछ भी related complaints related to the member, वो आपको ठीक से सर्विस नहीं दे रहा है, आपको आपके कुछ भी आपके पेमेंट रिलेटेड कुछ इशू है विद दी ब्रोकर मेंबर, और आपका डिस्प्यूट है वो कुछ आपको ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दे रहा है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए पास ऑन नहीं कर रहा है, सो दैट वो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, ये डूस एंड डोंट्स है, जिसमें कोई भी आपको कहता है कि आप भाई साहब 10 करोड़ या 1 करोड़ रुपया लगा लीजिए, मैं आपको XYZ रिटर्न दूंगा, सो ये सारी चीजें कमोडिटीज में होती है, PMS नॉट लॉट, सो इससे दूर रहिए। और जो भी आप काम करते हो, आज ही ट्रेड किया है तो टाइम के साथ आपको कितना पैसा लगा है, कितना आपको ब्लॉक हो रहा है पैसा, सारा कुछ रिकॉर्ड्स वो आपको ब्रोकर आपको पास ऑन करता है। सिमिलरली लेजर भी आपको रहेगा, कितना पैसा पड़ा है सारा उसको देना कंपलसरी है। और साथ में आपका सबसे मेन बात दोस्तों, डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहिए, डब्बा ट्रेडिंग मत कीजिए। डब्बा ट्रेडिंग आपको सस्ता लगता है, टैक्स बचाने का टूल लगता है, लेकिन आखिरी में डब्बे वाला आपका डूब जाता है, पैसा भी डूब जाता है। सो प्लीज डब्बे ट्रेडिंग से दूर रहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड एक्सचेंज में आप काम कीजिए, डब्बा ट्रेडिंग मत कीजिए। और साथ में जैसा कि ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आप काम करते हो, एग्जांपल के तौर पे जो अहमदाबाद से मान लीजिए बंबई गाड़ी रात को 9 बजे छूटती है और सुबह 9 बजे पहुंचती है, सो सबके लिए सेम ही टाइम है। सो वैसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स में जो डिजाइन किया है, सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, 11 बजे, सबके लिए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया हुआ है, सबके लिए 995 है, सो किसी के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सो सबको ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्राइसिंग मिलती है, सो ये इसका एडवांटेज है। और इसी के चलते आप
जो भी क्लाइंट का डिस्प्यूट है वो जैसा कि मैंने बताया रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके थ्रू आपका सॉल्व हो जाएगा। सो ये डूस एंड डोंट्स है। सो फ्रेंड्स चैट बॉक्स पे जो भी आपका थ्रो ओपन टू एनी क्वेश्चंस, आप थ्रो ओपन कीजिए आपका क्वेश्चंस। और तब तक मैं आपको खाली एक प्राइजेस बता दूं खाली गोल्ड के। Thank you, Amrapal ji. It was actually a very good, informative session. Before the audience asks question, I have a few questions for you. सर, MCX में जो गोल्ड और सिल्वर होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है? जो अगर फिजिकल अगर कोई डिलीवरी लेना चाहता है, तो क्या क्वालिटी का उसको गोल्ड मिल सकता है? यस सर। सर जो क्वालिटी जैसा कि आपने डिस्कस किया, सो 1 ग्राम और 8 ग्राम में 999 उसको क्वालिटी मिलती है। सिमिलरली 100 ग्राम और 1 kg में 995 क्वालिटी मिलती है। सिल्वर के 1 kg, 5 kg और 30 kg कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 999 फाइननेस की उसको उनको डिलीवरी मिलती है। सो एज फार एज फाइननेस इज कंसर्न, ये डिफरेंशिएशन है सर फाइननेस का। ओके, और सर ये जो प्राइसेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं MCX के, जी हाँ, तो इज इट इंक्लूडिंग GST? वेरी गुड क्वेश्चन सर। ये जो प्राइस जो है, देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिसंबर का LTP देखिए 48,134, ये देखिए सर, ये 48,134 मैंने हाईलाइट किया। 48,134 जो प्राइस है लास्ट रेट प्राइस है, इसके अंदर GST जुड़ा हुआ नहीं है सर। दिस इज एक्स अहमदाबाद, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, बट GST नहीं है सर। GST कब आता है? 29 को अगर आपको मार्किंग लग गई, आपको डिलीवरी लग गई, आपको पता चलता है अगले दिन सेकंड को, तो तब आपको जब पता चल गया कि मुझे डिलीवरी लग गई और आपको डिलीवरी लेनी है, फिर आपको GST कंपोनेंट आएगा। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आपको GST कंपोनेंट आएगा। ये आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस, ये आज का क्लोजिंग प्राइस नहीं है, कल वाला, कल से इसका मार्किंग चालू होगा। ये डिलीवरी पीरियड में कल से जा रहा है। आज जो है नॉर्मल फ्यूचर्स है, इसका नॉर्मल ट्रेडिंग है, कल से ये चला जाएगा आपका इसमें डिलीवरी पीरियड में। तो ये क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं, ये कल का क्लोजिंग प्राइस है 47,421। तो ऐसे ही ये कल का मतलब 29 नवंबर का क्लोज प्राइस आएगा, उसके ऊपर 3% GST से आपको डिलीवरी लगेगी। सो इसके अंदर इट इज नॉट, द GST कंपोनेंट इज नॉट देयर। थैंक यू सो मच। ट्रैक लेता हूं फरवरी का, ये देखिए 48,600 इसका LTP, 48,500। तो ये दो कंकरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मींस मंडे से फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में सब रोल ओवर ऑलरेडी पब्लिक रोल ओवर कर चुकी है। मंडे से सब लोग इसी में ही ट्रेड करेंगे जो हेजिंग करते हैं। जो डिलीवरी वाले हैं वो 5 दिन उसमें आप ये दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, और बाकी सारे जो रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका फरवरी में शिफ्ट हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन आया है अपने पास। जी हाँ सर। इन लोगों का कहना है कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, जो Yes, sir. मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बुलियन डीलर्स और डोर स्टेप पे डिलीवरी देते हैं। बिल्कुल सर। तो MCX से अगर फिजिकल डिलीवरी होती है तो क्या वो भी डोर स्टेप डिलीवरी? नो सर, नो सर, नो डोर स्टेप सर। सी मैंने पहले भी क्लियर किया सर, वी आर नॉट ए वी आर नॉट दी व्हाट यू से ई-कॉमर्स कंपनी टू गिव यू डोर स्टेप डिलीवरी सर। बिकॉज आप समझिए एक चीज, मान लीजिए दिनेश सर बायर हैं और रजत सर सेलर हैं। तो दिनेश सर बायर हैं, रजत सर सेलर है। रजत सर माल बेच रहे हैं, दिनेश सर माल खरीद रहे हैं। MCX सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहा है, जैसा क्रिकेट में होता है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, और एम्पायर होता है, फील्ड एम्पायर होता है, थर्ड एम्पायर होता है। सो MCX का काम है एम्पायरिंग और थर्ड एम्पायरिंग। सो हम ये एश्योर करेंगे कि प्रॉपरली खेला जा रहा है कि नहीं खेला रहा है, और जो नहीं खेलेगा, ऑब्लाइज नहीं करेगा, उसको पेनल्टी। सो वो 3% पेनल्टी जो हमने दिया है वो पेनल्टी है सर। सो वी आर एक्टिंग एज ए थर्ड पार्टी। और सेकेंडली सर ये जो आपको जैसा मैंने बताया, डिलीवरी जो मिलेगी अहमदाबाद में 29 को आपको लगी, 30 को आपके खाते में आई। सो आपको जाके ब्रिंग सिपल मलकामित के ऑफिस से फिजिकली जाके उसको रिसीव करके आपके शहर में लाना है, अगर आपके शहर में आपको लेना है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ब्रिंग सिपल मलकामित से प्राइवेटली आप अकाउंट खोलिए, उनको कह दीजिए
कि मुझे मेरे शहर में ट्रांसफर करके दे दीजिए, आपका जो भी कॉस्टिंग है वो आपका कॉस्टिंग ले लीजिए। सो ये एक तरीका है। सो यू कैन से इनडायरेक्ट आप उसका वो कुरियर का काम जो करेगा वो ब्रिंक सिक्वल करेगा। एमसीएक्स डोर स्टेप डिलीवरी नहीं देता है, बिकॉज वी आर एक्सचेंज एंड वी आर ओपनिंग ए डिलीवरी सेंटर। वी आर नॉट द ई कॉमर्स कंपनी विच विल डिलीवर गोल्ड टू द एंड कस्टमर। तो ये फर्क है सर, 100% ये फर्क है। और ये फर्क बीइंग ए रेगुलेटर, ये फर्क डोर स्टेप डिलीवरी, वी आर नॉट ए सर द ई कॉमर्स कंपनी सर। वो आपको ब्रिंक सिक्वल से ही लिफ्ट करना होगा जो हमारे डिलीवरी तो एक क्वेश्चन उसके और वो आपका सर वो क्वेश्चन द क्वेश्चन या सर द इशू इज दैट गोल्ड और सिल्वर बिलोंग्स टू यू, दैट इज योर प्रॉपर्टी सर। तो आपका वो काम है कि आप वहां से लिफ्ट करके आप अपने ऑफिस में ले आइए और आप उसको ऑर्डर दीजिए, अपने शहर में ले जाइए। तीसरा, आप उसको एमसीएस के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, प्रोवाइडेड वो आप वॉल्ट में ही पड़ा है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप बेच सकते हो। वॉल्ट टू वॉल्ट है तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपका वो बिक जाएगा। सर डिलीवरी का कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट एमसीएक्स एक्सचेंज कोई कुछ देता है आपका जो ये सर। तो फिर की सूरत बीइंग अ गुड हब एंड इमर्जिंग हब ऑफ ज्वेलरी मेकिंग, इज देयर एनी चांसेस कि एमसीएक्स का एक यहाँ पे भी हो या यहाँ पे भी एक ब्रांच हो जहाँ से? या आई एग्रीड विद यू सर। क्या है, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ एमसीएक्स कीपिंग ए वॉल्ट एट सूरत। एमसीएक्स का जो लिमिटेशंस है वो डिलीवरी सेंटर ओनली वन हो सकता है बीइंग ए फ्यूचर्स। सो एज ऑफ नाउ ओनली अहमदाबाद है। सो उसके अलावा अभी बहुत जल्द एमसीएस को स्पॉट की परमिशन फ्यूचर में मिल जाएगी। सो इन दैट केस वी माइट टारगेट सूरत आल्सो। इज एज ऑफ नाउ एमसीएक्स डज नॉट हैव द परमिशन फॉर स्पॉट। बहुत जल्द रेगुलेटर स्पॉट मार्केट डेवलप करने के ऊपर है। सो लेट्स सी एमसीएक्स को परमिशन मिलती है। सो एमसीएक्स विल डेफिनेटली स्टार्ट विद ए वेरी वाइब्रेंट हब लाइक सूरत एंड आल्सो राजकोट। ये दोनों जगह पे हमारा टारगेट रहेगा एज फार एज गुजरात इज कंसर्न। एंड ऐसा काफी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी वी विल आइडेंटिफाई द टॉप मोस्ट सिटीज, कंज्यूमर एज वेल एज इंपोर्ट सिटीज। सो वी विल डेफिनेटली टारगेट दैट। Great news. 1% when the seller question defaults is out of why does the buyer bears 1%? Yes sir. Yes. When the seller defaults, सर इसमें बायर को 1% डिलीवरी दी पेनल्टी मिल जाती है। और इनकेस अगर डिफरेंशियल कॉस्ट हुआ तो वो भी बायर को पास ऑन होगा, वो सेलर से रिसीव करके बायर को पास ऑन होगा। सो ऐसा नहीं है कि वो सेलर बोलेगा प्राइस तो हो गया 6%, आई विल डिफॉल्ट एंड विल रन अवे। नो, वो डिफरेंशियल ऑफ कॉस्ट भी उसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर, ये मैकेनिज्म इज एक्सट्रीमली स्ट्रिंजेंट एंड पूरा प्रॉपर नॉर्म्स के साथ है। बायर बेयर्स नहीं सर, बायर्स को मिलता है सर, आई मीन बायर को रिसीव होता है सर। Okay, that is good. सेलर डिफॉल्ट, बायर को 1% पेनल्टी मिलती है, हम सेलर से 3% पेनल्टी रिसीव करते हैं। और अगर 6% हो गया तो डिफरेंशियल ऑफ दैट 2-3% भी बायर को पास ऑन होगा सर। सो डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट आल्सो सर। एंड सर एवरीबडी आफ्टर जीएसटी अक्रॉस इंडिया, आफ्टर जीएसटी अक्रॉस इंडिया डिलीवरी काफी हो रही है। लोग एग्जांपल मुंबई में बुलियन डीलर है या ज्वेलर है, उसको लग रहा है कि मुझे कॉस्ट डिलीवरी का एमसेक्स में अच्छा लुक्रेटिव दिख रहा है। सो वो डिलीवरी लेकर एमसेक्स से अहमदाबाद के थ्रू फ्लाइट के थ्रू ब्रिंक सिक्वल यहाँ पर मंगा के देते हैं बॉम्बे में। सो काफी डिलीवरी ट्रांजेक्शंस हुए हैं। If anybody has question, आप क्वेश्चन आंसर सेशन या चैट जो अपना बॉक्स है उसमें भी आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन सर। सर कॉल पुट में देखिए क्या है सर, हमारा लिमिटेशंस है। हमारा कॉल पुट का लिमिटेशंस ये है कि एक मिनट आम्रपाल जी, अगर आप ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दे तो लोग आपसे इंटरेक्ट कर पाए। जी 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 यस सर, 1 मिनट। सर वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपका सर ने पूछा कि
ऑप्शन का ड्यूरेशन क्या है? ऑप्शन का ड्यूरेशन जो है सर, सी देयर आर 6 कॉन्ट्रैक्ट्स इन ईयर। 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट है, साल में 6 कॉन्ट्रैक्ट है। सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट है, साल में 5 कॉन्ट्रैक्ट है। सो द ड्यूरेशन इज ऑफ 60 days, मींस 2 months का ड्यूरेशन है। सो देयर इज नो प्रोविजन फॉर 1 month और 1 week, सिंस आवर कॉन्ट्रैक्ट जो है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्यूचर्स बेस्ड है। सो फ्यूचर्स का जो ड्यूरेशन है वो 60 days का है। सो रेगुलेटर ने जो परमिशन दिया है बेसिस फ्यूचर्स, तो हमें वो 1 महीने का और 1 week का परमिशन रेगुलेटर से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 months का है। सो ये लॉजिक है। एंड बहुत जल्द वी विल बी अप्लाइंग एंड वी विल अप्रोच रेगुलेटर फॉर दी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गोल्ड मिनी, जहाँ पे हमें ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स का परमिशन मिल जाए। सो आपको 100 ग्राम में आपको ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स आपको करने मिल जाएगा। और आपके नॉलेज के लिए सर, हमने 1 kg सिल्वर ऑप्शंस भी है। सो उसका प्रीमियम वेरी नेग्लिजिबल। सो अगर लेट्स से उसका प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीज, सो 50 या 100 रुपीज, 500 रुपीज चल रहा है, तो आपका जो कॉस्ट होगा सो वो 500 into 5, सो 2500 रुपया ही आपको देके उसमें आप काम कर सकते हो। सो वन वेरी लुक्रेटिव फॉर रिटेल एज वेल एज दी स्मॉल हेजर्स। सो उसमें आपका जो 1 kg और 30 kg में हमारा जो सॉरी सर 5 kg एंड 30 kg में हमारा जो है 5 kg एंड 30 kg में हमारा सिल्वर का ऑप्शन है। और सिल्वर का जो ऑप्शन है उसमें मैं आपको बता दूं कि मार्च दिसंबर एंड सितंबर दिसंबर एंड दिसंबर मार्च जो है वो 90 days के हैं। एंड बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रॉम मार्च टू मे एंड फ्रॉम मे टू जुलाई एंड फ्रॉम जुलाई टू दी व्हाट यू से सितंबर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 60 days के हैं। सो ये फर्क है कंपेयर टू द ड्यूरेशन। अगर आप बात करें तो 60 days है 3 कॉन्ट्रैक्ट के और 90 days है 2 कॉन्ट्रैक्ट के। सो ये थोड़ा अलग है कंपेयर टू दी इक्विटीज। सर सॉरी, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है सर, इसके ऊपर मैं जवाब नहीं दूंगा, गोल्ड बीज और ETF। तो माफी चाहता हूँ सर इसके। Yes, I can understand. Yes, sir. Gold bees and ETF is a different product and MCX is a different thing. So एंड फॉर वन आपके लिए एक अच्छा है कि सिल्वर ETF आर अबाउट टू स्टार्ट, एंड जो सिल्वर ETF में the mutual funds will be allowed to hedge in MCX silver. So ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। Okay. I guess Sanket, we may conclude the session. अगर किसी को और क्वेश्चन है, they can always send it to GJEPC, और हम लोग आम्रपाल जी से विनंती करेंगे कि वो हमारे जो ईमेल पे क्वेश्चंस है उनका आंसर करेंगे। होपफुली वी विल गिव आंसर। सो संकेत प्लीज। थैंक यू रजत सर। आज के वेबिनार में शुरुआत से लेके अंत तक गोल्ड और सिल्वर में कैसे हम हमारे एक्सपोर्ट को सिक्योर कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार में जानकारी देने के लिए और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं MCX की एंटायर टीम और आम्रपाल जी आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूं। साथ में ही अपने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकालकर आज के वेबिनार में उपस्थित रहने के लिए मैं श्री दिनेश भाई नावड़िया रीजनल चेयरमैन तथा अपने सहयोग के लिए श्री रजत भाई वानी असिस्टेंट डायरेक्टर GJPC तथा हमारे साथी सहयोगी सभी GJPC के सभ्यों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसके साथ वेबिनार में शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहने के लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस वेबिनार के बाद हम आपको एक फीडबैक फॉर्म भेजने वाले हैं जिसमें आपको वेबिनार कैसा लगा उसके बारे में कुछ क्वेश्चन होंगे। तो वो फीडबैक भरने के लिए आपको सभी को अनुरोध है। और साथ में अगर जैसे कि रजत भाई ने बोला आपको कोई भी क्वेश्चन है जिसका आज के वेबिनार में हम आपको नहीं चर्चा कर पाए तो आप हमें जरूर सहयोग करें और हमें संपर्क करें। हम तुरंत ही जितनी जल्दी हो सके आपको उसका समाधान प्रदान करेंगे। इसके साथ मैं इस वेबिनार का समापन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू थैंक्स अ लॉट संकेत जी, रजत जी, एंड थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आम्रपाल जी। थैंक यू एवरीवन।